registered in 2014, and our main activities have been procurement and processing of groundnut. And majorly, initially we started off with a lot of diverse set of mandate, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी हमको. जैसे कि first set of federations was promoted by SFSC in the year 2014. Actually, the process started from 2012, in which informal association of FPOs were formed. So from 2012 to 2014, we ran this association called Gujarat Rajya Krushak Manch. So it was an informal body of FPOs, NGOs, and research institutions, and kind of from that, based on the need, we registered it as a producer company afterwards. Because the main need was. Just clarify that Gujpro was the first federation. No. Actually, Madhya Bharat. Yeah, preceded us, and we were registered within a period of 3 to 4 months only, between that period. I think Madhya Bharat was registered in July or August, and we were registered in October. And we currently work in groundnut. Our main product is, like, we cannot focus on all the products. We tried initially, but as FPOs, we too have our limitations. We do not have such kind of expert base of people working on different commodities. Resource constraints were there, so we focused on groundnut. And from 2016, we were also involved in procurement, MSP procurement of groundnut oils, oilseeds and pulses. And last year, we also started trading in cumin and marketing support to mango growers. Last year, actually, we tried out everything. Initially, we started with mango without makeup brand. To actually, we used to, like, there is a common belief that most of the mangoes are carbide ripened or chemically ripened. So we ripened these mangoes in government approved ripening chambers, and then we tried to market it in multiple locations. Second year, we also exported mangoes to UK, and that was also one of the initiatives we did in 2016. And everywhere failure, so that's why we decided that we need to have a separate strategy. So last year we set up mango markets, Kesar Mahotsav. So we set up 2 markets, one in Naranpura, Ahmedabad, and one in South Bhopal. So it was a huge success. Around 23 farmers participated, and you won't believe 600 tons of mangoes were sold alone in one market, that was in Pallav Charasta. This value, it was 3.5 crores to 4 crores. Only 24 to 25 farmers. This year we went to buy that, again rent that space. But we learned that some of the farmers rented it on that place. They were so smart. They bypassed Gujpro and they rented their own. So we are identifying another location. And in MSP, we did sizable work in 16-17. It was around 43 crores of work. Then 17-18 it was 150 crores, and last year 83 crores. But again, there are so many drawbacks and minus points to MSP procurements. Still, we have not been able to get our money back even after 2 years. And cumin, हमने last year try किया. We actually, our approach is that initially when we enter into new business, we don't do it ourselves. We don't know, because actually we have not traded in that crop. So those FPOs which are already doing that, we support them. तो हमने 20 लाख इनको दिया था क्यूमिन में, and they traded it. We also learned our team. So this year we will be purchasing cumin and selling it. और दूसरा, one of the FPOs supported by Reliance Foundation and with tie-up with IFFCO, they have converted 500 farmers into residue free. मतलब उनको पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस वो दे रहे हैं. तो रेजिड्यू फ्री क्यूमिन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है. तो वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन को हमने एक कच्छ का एक NGO है और गुजप्रो ने जॉइंटली एक प्रपोजल डाला है कि वाई नॉट टेक अप मोर एरिया अंडर NPM, नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट. उसका कलेक्शन है तो लोकली द FPO विल सेल एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स एंड विद लार्जर बायर्स गुजप्रो कुड पिच इन. तो वो एक प्रपोजल डाला है उनके लेवल पर, और इस साल हम खरीदेंगे भी, हेजिंग भी करेंगे और मार्केट में भी बेचेंगे. पर मेजर दूसरे कंस्ट्रेंट्स है कि रेजिड्यू फ्री में आपको हर एक सैंपल टेस्ट करवाना पड़ता है. एक सैंपल का 6,000 रुपीज़ कॉस्ट है. अगर आप एग्रीगेट करते हो तो कौन सा सैंपल रेजिड्यू वाला है, कौन सा नहीं है. सो दीज आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स करेंटली फेस्ड. और अभी 29 FPOs हैं, 43 to 45,000 फार्मर्स के आसपास है. कोमोडिटीज ग्राउंडनट, क्यूमिन, तूर एंड मैंगो.
तो एज आई सेड इनिशियली जरूर मतलब वाइल कंसल्टेशंस काफ़ी सारे एजेंडाज थे, काफ़ी सारे जो तीनों एफपीओज ने मतलब अपना स्कोप डिफाइन किया था, मल्टीपल कोमोडिटीज, क्योंकि membership comes from different regions, for example from tribal region, from South Gujarat, from Kutch region, and they all have different crops, so all have different expectations, so they have different expectation from their FPOs, मतलब federations. So in MP also there are more than 100 members, in Maharashtra there are more than 200 members, and we actually had our experience from Sasta Sangh, so we limited our membership base. Initially we started with 10 and now we have 29. Because we knew that so many expectations we won't be able to fill. तो मेरा भी मानना है कि इवन एमपी फेडरेशन में हार्डली दे वुड बी एबल टू वर्क विद मतलब ऑन बिजनेस टर्म्स विद 10 एफपीओज अप टू 100, मुझे ऐसा लग रहा है 10 से 15. इवन महा एफपीओ में भी आई डोंट थिंक दैट मोर देन 10 to 15 एफपीओज इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी मेंबर्स. इवन वी आर एबल एक्टिव एंड स्लीपी. No, that is what the cautious decision we took initially, whether to register as a non-profit for policy advocacy and capacity building, or for actually as a business promotion organization. So the main need at that time during the consultation, several consultations, we felt that there is a need for value addition and marketing of the product. That is the support which FPOs require. But both can be handled. Yeah, both can be handled. Both can be handled. पर इसमें क्या है कि अभी जो द कंस्ट्रेंट्स वी आर टॉकिंग इन दिस ग्रुप, तो द मेजर प्रॉब्लम इज के एक क्लस्टर लेवल का एफपीओ है, मतलब ब्लॉक लेवल का, तो वी आर दिस के देयर इज फाइनेंस प्रॉब्लम, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है, और बाकी एक्टिव मेंबर्स का प्रॉब्लम है कि कैसे इसको कन्वर्ट करें. तो हमेशा सभी हमारे पार्टनर्स में मैं देखता हूँ कि कोई भी ट्रेडिंग करना है कि इनपुट साइड वो अच्छा कर लेते हैं अपने लेवल, फिर भी इतना अच्छा नहीं कर पाते कि अपना खर्चा निकाल पाए, ठीक है, बिकॉज एग्री इनपुट एक्टिविटी इज एंकर एक्टिविटी, बट आउटपुट मार्केट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स. तो वहाँ पे वो लेवल का स्किल सेट अभी भी है नहीं. कुछ एफपीओज ओवर 4 to 5 पीरियड हैव मैच्योर्ड एंड आर स्टार्टिंग टू डू सम ट्रांजेक्शंस इन द रेंज ऑफ 1 crore, 2 crore, 3 crore, मैक्सिमम 4 crore, 5 crore. पहले वो 10 लाख भी था, लॉसेस भी जाते हैं इनिशियली 1-2 साल, अगर वो मार्केटिंग करने जाते हैं तो लॉसेस भी आ जाता है उनको, ओके. तो वो सब एस्पेक्ट है. सो देर इज वन एक्सपेक्टेशन, सो फेडरेशन विच प्रोमोट्स विच द एफपीओ जो एसोसिएटेड है उसमें वो लेवल का स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए जो ट्रेंड हो, जो इनको सपोर्ट कर पाए. तो इनिशियली ये था कि हमारे में भी वो लेवल का स्किल सेट नहीं था, सो देयर वाज अ लर्निंग कर्व. सो वी ऑल्सो लर्नड ओवर 2 to 3 years. पहले जब हमने फेडरेशन प्रमोट किया था तो 10 लाख रुपए थे, सो वी रजिस्टर्ड ऑन ट्रेड प्लेटफॉर्म इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है. वी यूज टू जनरेट 100 लीड्स पर मंथ, 70 to 100 लीड्स, बायर लीड्स. फिर हम एफपीओ को बोलते आपके पास गेहूं है, ये है, पर वो क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल नहीं आता, सबका एक्सपेक्टेशन हाई होता है, फार्मर को पूछते हैं. तो वी चेंज अवर स्ट्रेटेजी कि वी नीड टू वर्क फ्रॉम द बॉटम लेवल, एक ही प्रोडक्ट लेते हैं. तो फिर ग्राउंडनट में थोड़ा थोड़ा करके आगे प्रोग्रेस किया हमने. तो लिमिटेड रिसोर्स एंड नो हाउ होता है, तो सभी फेडरेशन में यही प्रॉब्लम है. अगर मल्टीपल वैल्यू चेन्स की बात करो तो वो सब नहीं कर पाते हैं. अगर ओवर 3 to 4 पीरियड एक वैल्यू चेन पे काम करते हैं तो उस पर वो अच्छा काम कर पाए हैं. एमएसपी प्रोक्योरमेंट मतलब एक है कि 100 मेंबर हो, 50 मेंबर हो, तो उनको कैसे इन्वॉल्व करें. तो एमएसपी थ्रू ज़्यादातर मेंबर्स को इन्वॉल्व कर पाए हैं, बट एंड टू बिल्ड देयर कैपिटल, पर वो इतना प्रोडक्टिव है भी नहीं क्योंकि काफ़ी सारा पैसा रुक जाता है. दूसरा कि कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है तो इतने सारे मेंबर्स के एक्सपेक्टेशन कभी फेडरेशन पूरा कर नहीं पाता है, अनलेस इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. लॉट ऑफ मनी इज पम्प्ड इनटू इट. अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जैसे कि एनडीडीबी ने प्रोवाइड किए डेयरीज में, ऐसे एफपीओ में कोई है ही नहीं. एक्चुअली फेडरेशन रिक्वायर वेरी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स और बहुत सारा फंडिंग की ज़रूरत है, तो ही वो एफपीओस को सपोर्ट कर पाएंगे. दूसरा कि गुजरात गवर्नमेंट में भी पॉलिसी चेंज हो गई है कि हमें 3 साल से हम एमएसपी कर रहे थे, पर फ्रॉम लास्ट ईयर दे स्टॉप गिविंग इट टू एनी कोऑपरेटिव फेडरेशंस और एफपीओ फेडरेशन. तो वो तुरंत ही आपका जो चार्ट होता है वो तुरंत ही डाउन हो जाता है. अपने मार्केटिंग फेडरेशन को दे दिया. हाँ, अपने में स्टेट लेवल फेडरेशन स्टेट लेवल. क्योंकि आपको दिया तो वो मर जाएंगे ना, वो क्या करेंगे. अभी भी ज़्यादातर एफपीओ फेडरेशंस में सस्टेनेबल बिजनेस एक्टिविटीज़ का एक डर थे. हम कब से कोशिश कर रहे हैं कि एक सस्टेनेबल बिजनेस एक्टिविटी डेवलप करें. वी आर वेरी क्लोज, बट आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ द करंट ईयर ऑल्सो.
जैसे मैंने कहा कि एफपीओस की कैपेसिटी कम होने की वजह से कई बार हम इस साल हमारा जो पीनट का एक्सपीरियंस था कि भाई हमको आपसे 200 टन माल खरीदना है, आप मुझे प्रोवाइड करो, जो भी मार्केट रेट है उसके प्लस मैं 2% फार्मर को दूंगा, मतलब वो रेट से आप मुझे डिलीवरी कॉस्ट में डेली टू डेली रेट पड़ता है हमारा, जैसे कि जूनागढ़ डिलीवरी रेट है, उसके बेसिस पे आप अपना मार्जिन सब लगा के जो जूनागढ़ डिलीवरी उसके अंदर आ जाता है, तो आप मुझे करो। तो सबको था कि भाई वो हमारे लिए रिस्की है, तो वी फैसिलिटेटेड। दूसरा कि हमारे मैंडेट में क्या है कि एग्रीगेशन एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग इज द मैंडेट ऑफ द एफपीओ, पर वो लेवल तक अभी कोई एफपीओ है नहीं, सिर्फ 1-2 ही पहुंचे हैं, जैसे कि पीनट वैल्यू चेन की बात करो। सो वी सेड दैट वी विल हायर द प्रोसेसिंग यूनिट, यू जस्ट सप्लाई अस। फिर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उसने कहा कोई बात नहीं, जो भी मार्केट रेट देते हैं वो आप हमको प्रोवाइड करो, मैं आपको 1.1% कमीशन दे दूंगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन कोटेशन मंगाए, तो ट्रांसपोर्टेशन कोटेशन सबके हाई थे, फिर मुझे उसको लिमिट देना पड़ा कि आपको 12 रुपीज़ पर बैग मिनिमम ये डिस्टेंस का आपको कोटेशन ला के देना है, तो वो भी नहीं दे पाए। देन वी आवरसेल्व्स हैड टू अरेंज द ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स इज वेरी की, कि उसमें जितना पैसा बचाएगा वही आपका प्रॉफिट जनरली रहता है कोमोडिटी ट्रेडिंग में, क्योंकि उसमें मार्जिन्स नहीं होता। आप प्रोसेसिंग करके आके बेचो तो ही मार्जिन बनेगा, वरना 0.5%, 1%, 1.5% के आसपास होता है। सो इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इट विल गो डाउन। तो वो लेवल की कैपेसिटी गैप्स है। डायरेक्ट कंपटीशन विद मार्केट प्लेयर्स इन कन्वेंशनल ट्रेड, मार्केट प्लेयर्स मोर एफिशिएंट एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ट्रेडर्स होते हैं उनके पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल होता है एफपीओ से ज्यादा, रिस्क एपेटाइट भी ज्यादा होती है। वेरी फ्यू कंपनीज विलिंग टू वर्क ऑन स्पेशल बिजनेस टर्म्स विच आर फैसिलिटेटिव। मेरा इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ कंपनीज हैं जो एफपीओ से लेना चाहती है, तो दे आर रेडी टू मतलब एक्सटेंड देमसेल्फ, कि हाँ भाई आपका वो बोला कि कॉन्फिडेंस नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन का मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ, चलो मैं ब्रोकर भेज देता हूँ। अगर आपको क्वालिटी बेस्ड परचेज नहीं कर पाते, क्योंकि अल्टीमेटली जनरली बिजनेस में क्या होता है कि आप ट्रक भेजते हो, वहाँ पे क्वालिटी असेस करते हैं और फिर उसमें अगर डिडक्शंस है तो डिडक्शंस करके पैसे मिलते हैं, तो उसमें एफपीओ को कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो देर आर कंपनीज विच आर रेडी टू एक्सटेंड देयर से कि हाँ भाई मैं अपना आदमी भेज दूंगा आपको, वो वहीं से क्वालिटी कर लेगा और भेज देगा। तो वैसे बहुत कम कंपनीज हैं जो ऐसे फैसिलिटेटिव टर्म्स में काम करना चाहती है। लिमिटेड फाइनेंस अवेलेबल फॉर एफपीओस, फेडरेशंस फॉर ग्रोथ, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी एट हायर कॉस्ट। तो इसमें मैं एक चार्ट बनाया है कि जैसे कि ये अपनी सप्लाई चेन है, मतलब वैल्यू चेन प्लेयर्स है ये लोग, तो कहीं ना कहीं एफपीओ और फेडरेशन यहाँ पे फिट होता है इनके, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इनके बीच कहीं पे है। जैसे कि ट्रेडर सप्लायर है तो उसका काम है परचेज कमोडिटी फ्रॉम फार्मर्स, और प्रोसेसर को सप्लायर करता है और ट्रेडर को। उनका वर्किंग कैपिटल बेस जनरली 20 लाख से 2 करोड़ के आसपास होता है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम्स ही डील्स विद। उनके पास उतना वर्किंग कैपिटल होता है क्योंकि फार्मर को इमीडिएट पेमेंट करता है या फिर उसको 3 डेज के बाद पेमेंट करता है, और सामने जो भेजता है वहाँ पे वन वीक का कंडीशन होता है या 4 डेज 5 डेज का कंडीशन होता है, तो उसके लिए उनके पास इतना वर्किंग कैपिटल होता है। प्राइमरी प्रोसेसिंग सप्लाइज प्राइमरी प्रोसेस प्रोडक्ट, जो प्रोसेसर है प्रोडक्ट्स टू लार्ज प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स एंड होलसेलर। इनका वर्किंग कैपिटल बेस होता है 50 lakhs to 5 crores, जो प्राइमरी प्रोसेसर होता है। तो ये दोनों रोल एफपीओ के रोल में आता है। ट्रेडर जैसे कि मतलब जो एग्रीगेशन करना है, वो प्राइमरी प्रोसेसिंग करके आगे बेचना है उनको। तो उनके पास मतलब अगर आपको 500 फार्मर से खरीदना है माल, तो आपके पास कम से कम 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ के बीच में वर्किंग कैपिटल की उनको जरूरत है। अभी के केस में कोई एफपीओ को उतने लेवल का वर्किंग कैपिटल अवेलेबिलिटी है नहीं। सेकेंडरी प्रोसेसर क्या होता है कि जैसे कि मूंगफली लेता है, ब्लांच बनाता है या फिर अन्य प्रोडक्ट बनाता है। टर्शरी प्रोसेस होता है कि पीनट बटर बनाता है। गेहूं होता है तो गेहूं का आटा बनाता है या बिस्किट बनाता है। तो ये जनरली इनको सप्लाई करते हैं। तो ये रोल जनरली फेडरेशन का आता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स में होता है कि मल्टीपल एफपीओ से सोर्सिंग होता है और दे प्रोड्यूस सम नॉट एंड प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट। तो ये फेडरेशन इसमें घुसेगा तो रोल क्लैश होगा एफपीओ के साथ, इसलिए सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रोसेसिंग में फेडरेशन का जनरली रोल आता है। तो उसमें वर्किंग कैपिटल की एक्चुअली जरूरत पड़ती है। एमएसएमई में अगर देखें तो 5 crores to 20 crores के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन इस बिजनेस और उसका स्कोप।
तो एफपीओ और फेडरेशन को यहीं कहीं फिट करना होता है और उसके लिए इतने फाइनेंस की जरूरत होती है जो अभी के केस में इतनी अवेलेबल नहीं है। रोल ओवरलैप एफपीओ और फेडरेशन के बीच में ये बहुत होगा। इनिशियली जब नए एफपीओ बनते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि एफपीओ को कुछ पता नहीं होता है बिजनेस। तो फेडरेशन जब उसको ऑफर करता है कि वी विल परचेस फ्रॉम यू एंड वी विल बाय सेल इट टू लार्ज प्लेयर्स, हम प्रोसेसिंग कर देंगे, प्राइमरी प्रोसेसिंग। पर जैसे उसका मैच्योरिटी आता है, 2 साल होते हैं, 3 साल होता है, तो एफपीओ को भी वो वैल्यू चेन में आना है। दे ऑल्सो वांट टू क्लाइम द वैल्यू चेन। तो फिर 3 साल के बाद हो चुके प्राइमरी प्रोसेसिंग हम खुद करेंगे या हम खुद प्रोडक्ट बनाएंगे। तब फेडरेशन क्या एक्सपेक्ट करेगा और वो एफपीओ बोलेगा कि मैं लोकली मार्केट जितने मेरे जिसके रीजनल मार्केट, स्टेट मार्केट में मैं खुद बेचना चाहता हूँ क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा फायदा है। तो तब फेडरेशन और एफपीओ के बीच में वो क्लैश आता है। जैसे कि अगर बनास डेयरी बोलेगा कि मैं भी महाराष्ट्र में बेचूंगा और गुजरात में सभी जगह मैं अपना दूध बेचूंगा, तो अमूल और बनास के बीच में वो क्लैश और ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। यही अभी हम भी फेस अभी करना शुरू कर दिया है। तो उसमें वो रोल थोड़ा डिफाइन करना है, इसलिए हमने कहा कि प्राइमरी प्रोसेसिंग तो एफपीओ लेवल पे ही होना चाहिए। इनिशियल फैसिलिटेशन करना है तो गुजप्रो कर लेगा, पर प्राइमरी प्रोसेसिंग भी एफपीओज मैंडेट। और मैं आगे जो प्रोपोज्ड मॉडल है, क्योंकि हमने भी 5 साल एक्सपीरियंस लिया है, फ्यूचर में कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए तो मैं आगे बताता हूँ। गैप्स इन डिसीजन मेकिंग, एब्सेंस ऑफ स्किल स्टाफ लिमिट्स इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। जैसे कि गुजप्रो में अभी मैं इंचार्ज रोल पे सीईओ हूँ, हमने भी एक पूरा हमारा साइकिल एक 5 साल का घुमा है। अभी मुझे लगता है कि हाँ भाई जो सीईओ का या मैनेजमेंट है, दे शुड बी हैव स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेंट, क्योंकि उनके 30-30 एफपीओ के साथ उसको काम करना है। बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है। अगर एक एफपीओ 500 टन करता है तो आप 10 एफपीओ को 5000 टन आपको बेचना होता है। 30 एफपीओ को तो 15-20 हजार टन का आपको काम करना होता है। तो मतलब इसमें जो हमको टीम चाहिए, बहुत ही स्किल्ड टीम चाहिए है, और द सीईओ और मैनेजमेंट शुड बी इफेक्टिव एंड ऑल्सो विद राइट इंटेंशंस। क्योंकि हमने वो भी ट्राई कर लिया है कि इफेक्टिव सीईओ लाए थे, पर राइट इंटेंशन नहीं होने की वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं कई बार। तो एक वो होता है डिसीजन मेकिंग में भी खास एक मतलब इसमें जैसे कि आप काफ़ी क्रोर्स में डील करते हो तो एक गलत डिसीजन कैन लूज लॉट ऑफ मनी, एंड वी एक्चुअली वी डिडंट लूज, बट मतलब काफ़ी इस साल दिक्कत हुआ हमको। तो अभी भी काफ़ी सारी रिकवरी बाकी है हमारी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से। कई बार आपके खुद के बायसेस आ जाते हैं। 2 साल अच्छा बिजनेस किया कोई कंपनी के साथ, तो तीसरे साल आप स्केल अप करते हो कई बार, तो कई बार गलती हो जाती है। तो मतलब अगर कंपनी वीक हो जाती है तो आपको रिकवरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो फेस्ड इन फेडरेशंस, क्योंकि काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स में, बड़े फाइनेंस में करना पड़ता है। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मैकेनिज्म्स टू कैप्चर लर्निंग्स, एंगेज स्टेक होल्डर्स टू क्रिएट अ लार्जर इम्पैक्ट, ये कोई भी फेडरेशन में अभी है नहीं। और हमारा जो मानना है कि एक्चुअली फेडरेशन शुड बी कोमोडिटी स्पेसिफिक। अभी जितने फेडरेशन हमने इनिशियल स्टेज में बनाए वो स्टेट लेवल के फेडरेशन बनाए, तो मैंने कहा कि हर एक फेडरेशन की हर एक कोमोडिटी में काम करने की कैपेसिटी है ही नहीं, समझे। तो मोर कोमोडिटी स्पेसिफिक, जैसे कि एक रीजन में जैसे कि गेहूं वाले हैं, या फिर कोई वेजिटेबल वाला है, या फिर अपने पीनट वाला है, या फिर क्यूमिन वाला है, तो इफ दोस 10 to 15 एफपीओस फॉर्म अ फेडरेशन, दे विल बी वेरी इफेक्टिव वो रीजन में, क्योंकि उनका कंबाइंड अगर 10,000 हेक्टर्स हो रहा है, या फिर मतलब दिस जस्ट आइडिया कि काफ़ी सारा बड़ा एरिया हो जाता है, तो उसके पास काफ़ी वॉल्यूम होगा बायस हो, मतलब वो डील करने के लिए। अभी स्टेट लेवल फेडरेशन मेरे पास 29 मेंबर है, कोई मेज वाला है, कोई तूर वाला है, कोई मूंगफली वाला है। सो ऑल हैव एक्सपेक्टेशन दैट गुजप्रो विल प्रोवाइड मार्केट लिंकेज, वो नहीं हो पा रहा है। सो क्लस्टर स्पेसिफिक और कोमोडिटी स्पेसिफिक फेडरेशंस आर मोर प्रीफर्ड। जैसे अमूल की बात करें, सिर्फ दूध ही एक ही प्रोडक्ट है, और हमारे पास एग्जांपल है कि काफ़ी इफेक्टिव है। कोई वेजिटेबल के ग्रुप्स होते हैं फेडरेशन, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लार्ज बायर्स कंपनीज प्रीफर टू डील विद ट्रेडर्स एंड मिडलमैन बिकॉज दे कैन डिलीवर हायर वॉल्यूम्स ऑफ कमोडिटी। हमने दूसरा 1 करोड़ का माल बेचा है थ्रू ब्रोकर चैनल इस साल। एक कंपनी के साथ तो टाइप किया ही है, एंड नाउ विद इन 3 years वी विल हैव ऑल लार्ज कंपनीज पीनट इंडस्ट्री में जो हमारे साथ टाइप करेगी। इस साल से ही शुरू हो गया है, पर हमारा फाइनेंस थोड़ा अटक गया, इसलिए बिजनेस अटक गया पूरा। बट देर आर ऑल्सो इफेक्टिव ब्रोकर चैनल्स, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती है
तो उनको सोर्सिंग होता है कि भाई 15, 20,000, 30,000 टन्स होता है, सो दे कैन नॉट डील विद ईच एंड एवरी प्रोसेसर। तो हमने ब्रोकर चैनल्स थ्रू भी काम किया है और काफ़ी इफेक्टिव रहा है। तो फेडरेशन कुड ऑल्सो बी अ मिडल एजेंसी फॉर मल्टीपल FPOs to supply to large companies. Federation could promote value addition of commodities at level of FPOs by generating demand for value-added products in B2B and B2C segment. तो ये हमने एक प्रपोज किया है मॉडल कि कैसा होना चाहिए। जैसे कि FPO है तो प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एग्रीगेशन, प्राइमरी प्रोसेसिंग भी FPO लेवल पे होना चाहिए। सेल ऑफ प्रोसेस्ड कोमोड टू रिटेल एंड बल्क बायर्स इन लोकल मार्केट्स और रीजनल मार्केट्स। जो कोमोडिटी स्पेसिफिक फेडरेशन है तो प्रोक्योरमेंट फ्रॉम FPOs कि FPOs से पास प्रोक्योर करके सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रोसेसिंग, मैंने कहा जो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, या फिर लार्ज बायर्स को जो, जैसे कि पीनट में ऐसा है कि मैं पीनट कर्नल्स बनाता हूँ तो मुझे बीच की चैनल को बेचना पड़ता है, कोई एक्सपोर्टर को देना है, कोई बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको एक लेवल का ज़्यादा वैल्यू एडिशन चाहिए, जैसे कि ब्लांच्ड चाहिए, रोस्टेड चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स वो ब्लांच्ड खरीदते हैं। तो मुझे अपनी फैसिलिटी में, अपनी सर्विसेज में एक और चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम डीशेलिंग आई ऑल्सो हैव टू पुट इन रोस्टर्स। तो रोस्टर्स करूँगा तो जो भी मल्टीनेशनल्स है, जैसे कि ITC है या फिर मतलब अपने हेक्टर बेवरेजेस है, बहुत सारी कंपनीज है, हल्दीराम है, उनको मैं बेच पाऊंगा। अभी मैं नहीं बेच पाता क्योंकि मेरा एक वैल्यू चेन मिसिंग है। तो फेडरेशंस कोमोडिटी कुड इंस्टॉल दोज फैसिलिटीज, सेकेंडरी प्रोसेसिंग का है, टर्शरी प्रोसेसिंग का है, दे कैन ऑल्सो एंगेज इन एक्सपोर्ट्स में है, B2B बिजनेस में एंगेज हो सकते हैं। और जो स्टेट लेवल का फेडरेशन है, जैसे कि अगर ये चैनल बन जाता है तो इनको जो टेक्निकल नो हाउ है, सपोर्ट सर्विसेज है, साथ में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि B2B बिजनेस में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि मूंगफली का था, इस साल बहुत प्रोडक्शन था, ऑलमोस्ट डबल देन लास्ट ईयर। तो हमने सोचा कि प्राइस क्रैश होंगे, पर इसलिए ज़्यादातर फार्मर्स ने इनिशियली बेच दिया, प्राइसेस अच्छे थे, बेच दिया। पर अभी बहुत हाई अप्रिशिएशन हुआ है इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ प्रोडक्शन। रीज़न क्या था कि भाई चाइना में प्रोडक्शन कम था, फिर मलेशिया का इंपोर्ट बंद हो गया पामोलिन ऑयल का, तो ग्राउंडनट ऑयल का कंजम्पशन बढ़ गया। तो इतना बड़ा प्रोडक्शन होने की वजह से भी प्राइसेस काफ़ी अप्रिशिएट हुआ। नहीं, वेयर हाउसिंग स्टोरेज जनरली अपने FPO लेवल पे यहाँ पे मैंने देखा है कि वो कहीं पे है ही नहीं, स्टोर नहीं करते। जनरली कुछ क्यूमिन में करते हैं, NCDX में हेजिंग करते हैं, थोड़ा बहुत स्टोर करते हैं, बट बेस्ड ऑन द कैपेसिटी, अगर उसके एरिया में अगर 5,000 टन हो रहा है तो वो सिर्फ 50 टन ही स्टोर कर रहे हैं। मतलब वो लेवल का अनएक्सप्लोर्ड पूरा फील्ड है पूरा उसे। तो उसमें क्या है कि इवन द मार्केट प्लेयर्स कैन नॉट एसेस द मार्केट, दे कैन नॉट ऑल्सो प्रेडिक्ट दैट दिस विल बी द प्राइस। तो हम फार्मर लेवल और FPO लेवल पे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कोई हेजिंग मैकेनिज्म भी उसके साथ होना चाहिए। तो सर जब MRP लगेगा आपके प्रोडक्ट पे, मिनिमम रिटेल प्राइस, तभी हम फार्मर्स को एक एश्योर्ड प्राइस डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स है। इसलिए एक तमिलनाडु में जो फेडरेशन है, जो हमारे दोस्त स्टडी करके आए हैं, तो बहुत अच्छा मॉडल है, और हमने अमलसाड में देखा सब जगह। उसने चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स किए हैं और एक ब्रांड में प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो आई थिंक स्टेट लेवल फेडरेशंस को, जैसे कि अमूल ने किया है कि ब्रांडिंग किया है दूध का, तो उसी हिसाब से ये सेगमेंट में आने की ज़रूरत उनको है। तो हमने पहला अपने रिटेल स्टॉल डाल लिया है, सात्विक ग्राहक बाजार, एज अ स्टार्टअप, एज अ लर्निंग पॉइंट। एक साल के लिए हम लोग उसको लर्न करेंगे और फिर देखेंगे कि स्केल अप हो सकता है कि नहीं। सिमिलरली अपने सह्याद्री ने अभी उसको काफ़ी फंडिंग मिला है, कुछ 120 करोड़ का ये स्टोर शुरू करने के लिए। इन्होंने तमिलनाडु फेडरेशन ने 11 स्टोर 15 स्टोर किए थे, तो अभी कुछ MOU साइन हुआ है कि अभी मुझे पता चला कि 110 स्टोर करने के लिए। तो एक मार्केट प्लेस क्रिएट होता है और सभी APS उसको टास्क दिया जाएगा कि तुम तूर दाल बनाओगे, तुम मूंग दाल बनाओगे, तुम ये ऑयल बनाओगे, ये बनाओगे। अगर एक दुकान में भी अगर 2 किलो बिकता है तो आपके 100 दुकान में कितना सारा माल बिकेगा। तो स्टेट लेवल फेडरेशन को उसमें फोकस करना चाहिए। और मेन इज दिस कोमोडिटी स्पेसिफिक फेडरेशंस जो रीजनल लेवल पे बनते हैं, दिस विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू चेन प्लेयर। मतलब अपने इकोसिस्टम में इसका रोल बहुत होगा, क्योंकि FPO लेवल पे कैपेसिटी गैप्स है, बहुत है। उसको ब्रीच करने के लिए इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे, मतलब फेडरेशंस में, ताकि दे कैन गाइड देम एंड दे कैन इन्वॉल्व देम इन वैल्यू चेन। तो
हाँ कॉमोडिटी स्पेसिफिक में then फिर मंथली इनकम कैसे इंश्योर होगा? हम्म? मंथली इनकम फेडरेशन में कैसे इंश्योर होगा? ये जो कॉमोडिटी स्पेसिफिक में काम करते हैं, Cash flow. जैसे लीड पे करते हैं तो 4 महीने का साइकिल खत्म होता है। नहीं, हर एक बिजनेस पूरा साल हो सकता है। वैसे इट शुड बी स्टोर्ड, इट शुड बी, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होना चाहिए कि ऑल राउंड आपका सप्लाई हो। उस जाने के लिए शुरू तो डाइवर्सिफिकेशन हाँ, और दूसरा क्या होता है कि 2 सीजन्स होती है, खरीफ रबी। ओके, तो दोनों 2 मेजर कमोडिटीज होती है। आप वो भी कर सकते हो कि हाँ भाई ये खरीफ की ये मेजर कमोडिटी है, रबी की ये मेजर कमोडिटी है, उस प्रकार से भी हो सकता है। खरीद लिया, सोयाबीन खरीद लिया, हाँ। तो दोनों और सर इसमें तो ये ऑर्गेनिक रेजिड्यू फ्री फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स में जैसे कि अभी मार्केट्स ओपन हो रहे हैं, तो और दूसरा क्या है कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये सेगमेंट में अगर एंटर हो तो उसमें रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि हमने फेयर ट्रेड में भी किया है। अभी ऑर्गेनिक की एक डिमांड हमारे जैसे कि पीनट्स में है, तो ऑर्गेनिक मूंगफली की डिमांड आने लगी है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आने लगे हैं। और बस यही था। और मतलब क्रेडिट गारंटी जैसे कि एफपीओस का तो 200 लाख हो गया है, पर फेडरेशन का इट शुड बी एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीस जो क्रेडिट गारंटी कवर, वो रिक्वायरमेंट है। या श्योर। No, I'm living up to my job. Living up to your reputation. No, frankly, it was such a fascinating presentation. Every time we listen to Kuldeep, we learn so much because he's on the cutting edge of what are the possibilities in collective enterprise. So it's really worth every slide that he has presented. So, yeah. I think we'll wait for the question answers later and finish with the presentations first. So who is coming next? Sachin? So मैं